हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है, उसका चैप्टर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेज एंड इंडियाज़ इलेक्ट्रोल सिस्टम। सो इसकी हम वर्कशीट करने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया? तो कितनी है? 18 ईयर्स। So, Indian citizens aged 18 and above have the right to vote under the Universal Adult Franchise. Which article of the Indian Constitution ensures the Universal Adult Franchises? तो कौन सा है? Article 326. Article 326 provide for elections to the Lok Sabha and legislative assemblies based on universal adult suffrage. Which body is responsible for conducting free and fair election in India? तो कौन सी है? Election Commission of India. The ECI is a constitutional body responsible for managing election independently. तो Election Commission of India जो है इसको देखता है. How many constituencies are there in Lok Sabha election? तो कितनी है? 543. There are 543 elected Lok Sabha constituencies across India. मेंबर ऑफ राज्य सभा आर इलेक्टेड बाय, कैसे होंगे? बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. सो राज्यसभा इलेक्शंस आर हेल्ड इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टेड MLAs. विच वोटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन लोकसभा इलेक्शन? तो लोकसभा में क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. सो द कैंडिडेट विद द हाइएस्ट वोट इन द कंस्टिट्यूएंसी विंस. जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीतेगा. द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या है? Refers to general election. General election are celebrated as the festival of democracy in India. The President of India is elected by, कैसे होते हैं? An electoral college of MP and MLAs. So the President is chosen indirectly. Indirectly choose होते हैं by MPs and MLAs using proportional representation. Who was the Chief Election Commissioner famous for strict electoral reform in 1990? तो कौन थे वो? TN Session. He introduced voter ID, strict campaigns rules and spending regulation. So इन्हें जो है सबसे strict बोला जाता है. One major challenge of India's election is, तो क्या है? Money, power and criminalization in politics. These issues undermine fairness in Indian elections. Now match the following. कॉलम A एंड कॉलम B, तो इन दोनों को आपस में करना है मैच. सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, everyone above 18 कैन वोट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंश्योर्स इलेक्शंस आर फेयर एंड फ्री. राज्यसभा, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विन. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. एवरी इंडियन सिटीजन अबव 18 ईयर्स कैन वोट. तो ये फॉल्स है. 18 ईयर होना चाहिए, 21 नहीं. ठीक है, 21 तो ऑलरेडी 18 हो जाएगा. द लोकसभा हैज़ 543 कंस्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन. सो दिस इज ट्रू. देयर आर 543 डायरेक्टली इलेक्टेड लोकसभा सीट्स. द राज्यसभा नेवर डिसोल्व कंप्लीटली. सो दैट इज ट्रू. इट इज़ कॉल्ड द परमानेंट हाउस. इसे परमानेंट हाउस बोला जाता है. विद 1/3 रिटायरिंग एवरी 2 hours. सो 1/3 इसमें से हर साल हर 2 years में रिटायर होते रहते हैं, लेकिन सारे के सारे एक साथ नहीं होते. वुमेन इन इंडिया गोट द राइट टू वोट इन 1950, मच लेटर देन इन स्विट्जरलैंड. तो ये फॉल्स है. इंडिया ग्रांटेड वुमेन सफरेज फ्रॉम द स्टार्ट वाइल स्विट्जरलैंड डिड सो इन 1971. The Election Commission of India was established in 1950. So that is true. It has been functioning since 1950 as per the Constitution. The Model Code of Conduct prevent political leaders from misusing government resources during election. So ये क्या है? True है. It ensures fairness by limiting undue influence during elections. Now fill in the blanks. The right to vote in India is based on, किस पे है? Universal Adult Franchises पर बेस है. The Chief Election Commissioner in the 1990 who brought strict reform was TN Session. Lok Sabha members are also called, क्या बोला जाता है? Members of Parliament, MPs. The minimum voting age in India is 18 years. Elections in India are often called the festival of democracy. The Rajya Sabha is also known as permanent house. आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस. कौन सा है? 326. नाउ
Very short answer questions. Define universal adult franchise in one sentence. So it means every Indian citizen जिसकी भी एज 18 है या उससे ऊपर है has an equal right to vote irrespective of caste, religion, gender or income. Who can vote in India? Any Indian citizen जिसकी एज 18 एंड अबव है वो सब क्या करते हैं, जो कि रजिस्टर हैं एज अ वोटर एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, तो वो वोट कर सकते हैं. वट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच वोट इन इंडिया? क्या वैल्यू है? सो ईच वोट हैज़ इक्वल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द वोटर्स सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड. सबकी वैल्यू सेम है, चाहे आपका सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो. Who conduct the elections in India? So the Election Commission of India. What is the role of the State Election Commission? तो इसका रोल क्या है? It conducts elections to the local bodies like municipalities and panchayat within a state. What do MP and MLAs stand for? So MP का मतलब क्या है? Member of Parliament, and MLAs are member of Legislative Assembly. Write one key feature of the Model Code of Conduct. सो पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर क्या करते हैं, कैन नॉट अनाउंस कोई भी न्यू स्कीम जो है ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम पे कोई भी नई स्कीम जो है वो अनाउंस नहीं कर सकते, ताकि जो है इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ वो वोटर्स को. वाई इज़ द राज्यसभा कॉल्ड द परमानेंट हाउस? तो क्यों इसे परमानेंट हाउस बोला जाता है? बिकॉज इट नेवर डिजोल्व्स, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. विच मैथड ऑफ द वोटिंग इज़ यूज टू इलेक्ट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? सो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को जो है सिलेक्ट करने के लिए या इलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है? सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये यूज़ किया जाता है. लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन चैलेंज फेस्ड इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया. सो इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर एंड कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड्स. सो इसके साथ ही आपका ये जो है वर्कशीट इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाती है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.